Here in this case it says write two limitations of Ohm's law. Ohm's law की हमें क्या लिखनी है, limitations लिखनी है, and we have to then plot their IV characteristics. IV characteristic ही पहले बना लेते हैं. IV characteristic में you would be taking V, you would be taking I on let's say x axis, sorry y axis. तो हमारा curve कैसा बनता है, एक straight line बनता है. This is for a resistance when applied with कांस्टेंट टेम्परेचर. अब सबसे पहली लिमिटेशन यही होती है कि ओम्स लॉ कौन ओबे करता है, इट इज ओनली ओबेड बाय द मेटल कंडक्टर्स. और मेटल कंडक्टर्स भी तभी ओबे करेंगे व्हेन देयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. सो व्हाट यू नीड टू मेंशन हियर, मेटल कंडक्टर्स वुड बी फॉलोइंग ओम्स लॉ एंड व्हेन टेम्परेचर and other physical conditions would be constant, otherwise it won't be the same. ठीक है. सेकेंड सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास इट वुड बी, it is not applicable to gaseous conductors, it is not applicable to semiconductors as well. So these are all the limitations of your Ohm's law. It is not applicable for most of the conductors like semiconductors. ठीक है. So this is, you can mention as two limitations of Ohm's law, and for plotting their IV characteristic you can draw like this. Now we have the B part of it. It says that we have a heating element connected. It is connected across a battery of 100 volt, and then they are saying they have an internal resistance of 1 ohm. Internal resistance भी दिया हुआ है, और internal resistance यहाँ पे हमें दिया हुआ है अगर, तो I am sure we would be using the resistance formula, जिससे कि हम क्या निकाल सके यहाँ पे, we can find the power consumed. क्योंकि power consumed में obviously I need I square R. ठीक है. तो यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट है, I is given, और दूसरी बात हमारे पास टेम्परेचर थे यहाँ से कि रूम टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है, and which settles after a few seconds to a steady value. What is the power consumed by battery itself after the steady temperature of 320 degree Celsius is attained? अब यहाँ पे हमें पहले तो पता होना चाहिए what is the formula for finding current. In this case क्या होता है, EMF is there and it would be divided by R naught plus R. और यहाँ पे R naught क्या है, it is the resistance at room temperature which is 20 degree Celsius. और यहाँ से अगर आप R naught निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, it would be nothing but E divided by I minus 1. EMF कितना है इस सिचुएशन में हमारा 100 इज देयर, I कितना 10 है, माइनस 1 करना है, 100 over 10 कितना हो गया आपका, इट इज नथिंग बट 10. 10 में से 1 गया, इट वुड गिव यू 9 ohm. अब हमने क्या करना है, वी नीड टू नाउ फाइनल टेम्परेचर इज 320. टेम्परेचर कितना राइज हो चुका है 320, तो चेंज कितना आया टेम्परेचर में, डेल टी कितना हो जाएगा, इट वुड बी 320 माइनस 20 विच इज लाइक 300 डिग्री सेल्सियस. अब हमें R की वैल्यू निकालनी है, इट वुड गिव यू R नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा, डेल टी वुड बी देयर. R नॉट की वैल्यू कितनी है 9, 1 इज देयर, प्लस का साइन आएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, इट इज गिवन एज the coefficient is given as 3.70 into 10 to the power minus 4, और del t here in this case is 300. तो अब यहाँ पे अगर हम रिमूव कर दें these zeros, so I will put 2 zeros down, 2 zeros से 2 zeros हमारे कैंसिल होते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 9 is there, 1 is there, and then you need to multiply 370 with 3. 3 से मल्टीप्लाई करोगे 370 को, and then you need to multiply it with 10 to the power minus 4. So here in this case I am getting 370 into 3 which is like 1110, and in division I have what value, 10,000 है क्योंकि 10 की पावर 4 है, एक 0 से एक 0 गया, 9 is there, 1 is there, और 111 को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो you would get 0.111. ठीक है. एंड देन 9 is there और 1 में क्या ऐड करना है हमने, 0.11 which is like 1.11. So if I multiply these two values आपको क्या मिल जाएगा, 9.999 which is like 10 ohm in this situation. 10 ohm आ गया हमारा.
नाउ दे आर सेइंग अप्रोक्सीमेटली 10 ओम आप लिख सकते हो इसको. देन दे आर सेइंग पावर कंज्यूम्ड कितनी है, P निकालना है हमें अब इस सिचुएशन में से. तो पावर कंज्यूम वुड डिपेंड अपॉन आई स्क्वायर ओवर आर. बट इसमें पहले हमें आई तो निकला है, P इज देयर, आई स्क्वायर इज देयर, आर इज देयर. आई की वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इनटू आर वुड बी देयर. अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. आर की जगह क्या पुट करोगे, बिग आर की जगह, इट वुड बी 10. सो हियर इन दिस केस इट वुड बी 10. और यहाँ पे एप्सिलॉन है हमारा 100. आर प्लस आर कितना हो गया, इट वुड बी 110 होल स्क्वायर. नो सॉरी, दिस इज हाउ मच, 10 इज देयर और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये तो हमारा सिर्फ 11 होगा. ठीक है. अब 100 स्क्वायर है हमारे पास एंड 11 इज देयर और मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 10 से. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आंसर वी आर गेटिंग हियर. तो यहाँ पे आपके पास 100 का स्क्वायर हो जाएगा एंड देन इट वुड गेट मल्टीप्लाइड विथ 10 एज वेल. सो 100 स्क्वायर and one more 0 and then divided by 11. क्योंकि एक एक्स्ट्रा 0 आएगा, क्योंकि एंड में देखो अगर ध्यान से तो हमें दिया हुआ है ना एक एक्स्ट्रा 0. सो आई हैव 5 zeros in the numerator and then divided with 11. So I would approximately get the value of power as, so I am getting answer as 82.6. no 82.6 नहीं, एक डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट होगा, इट वुड बी 826.4 watt. And that is your answer for 31B part.